Hello kids, how are you all? Hope all of you are doing well. So today we are back with chapter 4. और क्या नाम है चैप्टर का? The Fox and the Little White Hen. So this is the story about a fox और एक छोटी सी hen की. So again as usual, before starting with the chapter, we will be doing the warm-up exercise. So here we go kids. Close your eyes, think of the animals, birds and insects you see around you. आपको क्या करना है? अपनी eyes को बंद करना है और आपको ऐसे animals, birds और insects के बारे में सोचना है जो आप अपने आसपास देखते हैं. Which are the ones that come to your mind? चलो, I am also closing my eyes. So if I will name the animal, yes, dog, cat, rat, hen, these are the common ones. Cow, buffaloes, calves. So these are the common animals. Then what else you have to do? Birds, yes. So sparrows, crow. So these are the manna. All these are the common birds. And insects, what sort of insects? Flies, caterpillars, butterflies. So these type of insects we generally see. Yes or no? Now after that what you have to do is note them. So you have to write it down. What would you like to do, feel like doing when you see them? क्या आपके mind में आता है? When I see a cow or buffalo or especially a calf, I want to hug that calf. मुझे उसको बहुत मन करता है कि अपने पास लेकर आऊँ और उसको सहलाऊँ. हग दैट काफ. फीड करने का मन करता है. ऐसे ही डॉग्स को फीड कर सकते हैं. देन वी कैन शो आवर लव टू द एनिमल्स. इंसेक्ट्स, कई बार इंसेक्ट्स क्या होते हैं, बिल्कुल हमारे आसपास से जाते हैं. सो हम थोड़ा सा उनसे दूर होकर चल सकते हैं. इज़न्ट इट? बर्ड्स को देखकर बहुत अच्छा लगता है. एंड व्हेन आई सी द बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई आई एक्चुअली फील वेरी गुड. एंड आई डोंट लाइक द केज्ड बर्ड्स. किस टाइप की फीलिंग आती है कि वो उड़ना चाहते हैं एंड वी आर डूइंग? वी आर रिस्ट्रिक्टिंग देम. हमने उनसे उनकी लाइफ ले ली है. बट वी शुड हेल्प देम. उनको क्या करना चाहिए? थोड़ा सा वी शुड provide food to them whenever possible. Okay, now open your eyes, check the correct one of the two options given below or add one of your. Now few options are given related to this only, तो आपको टिक करना है जो ठीक है, और आपके माइंड में अगर कुछ और एडिशनल है तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं. It is summer time. Yes, right now it is summer and the birds are thirsty. Very important. Birds बहुत thirsty होते हैं. So what we can do? We can provide them with water and we should do that. You will do nothing. No, this is wrong. We must do something. हमें क्या करना चाहिए? I'll just erase it. Yes. So this is wrong. Keep a bird feeder with food and water outside. What is a bird feeder? A bowl type जिसमें आप दो bowls ले लीजिए. एक में आप पानी रखेंगे और एक में कुछ खाने के लिए रख दीजिए. Very simple. कहीं पर भी आपकी balcony में, and if you have a terrace पर, wherever. If you have a garden, wherever possible, even at the roadsides you can keep it. You see a tortoise at a beach. हमने क्या देखा? अगर आप लोगों ने क्या देखा? एक tortoise. You will touch and poke it with a stick. आप ऐसा करोगे क्या? उसको टच करोगे और स्टिक से उसको हिट करोगे? No, that is very bad. Enjoy looking at its movement as it swims into the sea. आप भी enjoy करिए और turtle को भी enjoy करने दीजिए, isn't it? So this is the right approach. So kids, finally now we are starting with the chapter. Once upon a time there was a little white hen. एक बार की बात है, कौन थी? एक छोटी सी वाइट hen थी. She lived in a little brown house. किसमें रहती थी वो? छोटे से प्यारे से ब्राउन कलर के हाउस में. In a clearing in the woods. Woods means जंगल. जंगल के आसपास. Every day she worked in the house. हर दिन वो अपने घर में काम करती थी.
शी डिड ऑल द क्लीनिंग हरसेल्फ, वो खुद ही अपने पूरे घर को क्लीन करती थी. शी ऑल्सो हैड अ लिटिल गार्डन, घर के आगे छोटा सा प्यारा सा गार्डन भी था. शी लव टू वर्क इन द गार्डन, उसको गार्डन में काम करना बहुत पसंद था. शी हैड प्लेंटी ऑफ सीड बेयरिंग प्लांट्स, तो उसमें उस गार्डन में क्या थे, बहुत सारे प्लांट्स थे जिसमें सीड्स लगी हुई थी. तो शी डिड नॉट नीड टू गो टू द मार्केट फॉर हर डेली नीड्स, तो जो भी चाहिए होता था ज़्यादातर गार्डन से ही मिल जाता था, तो मार्केट उस hen को डेली डेली नहीं जाना पड़ता था. नियर द वुड्स लिव्ड अ फैमिली ऑफ फॉक्सेस, वहीं फॉरेस्ट के पास, वुड्स के पास कौन रहता था, एक फैमिली रहती थी फॉक्सेस की. One day Mama Fox said to Papa Fox, I want a fat hen for our supper. क्या बोला, मामा फॉक्स ने पापा फॉक्स को बोला कि ना आज खाने के लिए रात में क्या चाहिए भाई, एक बहुत ही फैट हैन चाहिए फॉर द सपर. सपर मीन्स ड्यूरिंग द ईटिंग टाइम, जो हम खाना खाएंगे उसके लिए हमें एक फैट हैन चाहिए, फैट हैन. देयर इज नथिंग इन द पैंट्री फॉर आवर बेबी फॉक्सेस. नाउ पैंट्री the eating place, the kitchen. So what she said कि पैंट्री में कुछ भी नहीं है हमारे बच्चों के खाने के लिए. So Papa Fox took his large bag and started out to find something for their supper. तो पापा फॉक्स ने क्या किया, एक बहुत बड़ा सा बैग लिया और बाहर चले गए और ढूंढने लगे कुछ कुछ कि खाने के लिए मिल जाए. At first he strolled down the path. पहले वहाँ पर जो रास्ता था वो उससे नीचे गए. With his mind on a delicious meal, के माइंड में क्या चल रहा था कि कुछ डिलीशियस, बहुत टेस्टी सी मील मिल जाए. Then he ran down the road until he came to the woods. और फिर वो रोड के साथ चलते रहे जब तक कि वो फॉरेस्ट तक, जंगल तक नहीं पहुँच गए. Surely I will find something here, he said. तो उन्होंने अपने आप से कहा फॉक्स ने कि यहाँ पर तो मुझे ज़रूर कुछ ना कुछ खाने के लिए मिल जाएगा, रात के खाने के लिए. बट ही फाउंड नथिंग टू ईट इन द वुड्स, बट वहाँ जंगल में भी कुछ नहीं मिला. ही वॉकड ऑन एंड एज ही केम नियर द लिटिल ग्रीन गार्डन ही सेड, आई स्मेल फ्रेश केक. तो वो चलते जा रहे थे और फिर एकदम से वो कहाँ पहुँचे, उसी लिटिल ग्रीन गार्डन में जहाँ पर कौन रहता था, हैन, द वाइट हैन. और किसकी स्मेल आई वहाँ पर, फ्रेश केक की स्मेल आई को वहाँ पर, फ्रेश केक की. ओ आई स्मेल अ लिटिल वाइट हैन. उन्हें क्या बोला, मुझे तो एक छोटी सी किसी वाइट हैन की स्मेल आ रही है यहाँ पर. Sure enough, there was a little white hen eating her seed cake. और वहाँ पर कौन दिखी, एक छोटी सी वाइट हैन जो अपना सीड्स का बना हुआ केक खा रही थी. Papa Fox, a cunning fellow, stole up softly behind her, grabbed her and put her into his bag. As you know that foxes are very cunning. Cunning means बहुत चालाक होते हैं, धूर्त होते हैं. cunning, धूर्त मीन्स उनके लिए कोई इमोशन, सेंटिमेंट्स कुछ नहीं होते. बहुत क्लेवरली आया फॉक्स और बहुत आराम से, पता भी नहीं चला उस हैन को. उसने उस हैन को पकड़ा, ग्रैब किया, मतलब पकड़ लिया और अपने बैग में रख दिया. ओ माय गॉड. ही क्विकली टाइड द टॉप, और एकदम से ऊपर से उसको बंद कर दिया. कैन यू सी द बैग. Then he ran quickly off down the hill towards his home. और फिर झटपट वो फॉक्स भागा है हिल से होते हुए अपने घर की तरफ. The little white hen was frightened. Obviously, जो छोटी सी white hen थी वो बहुत डर गई थी. Frightened means डर जाना. She could only whisper. वो बस हल्के हल्के whisper कर पा रही थी कि oh dear, oh dear, oh dear. मतलब उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि एकदम से मेरे साथ ये क्या हो गया. तो हल्के हल्के वो बोल रही थी oh dear, oh dear, oh dear. She was a very neat and natty little hen. वो बहुत ही प्यारी सी, छोटी सी और क्यूट सी hen थी. The bag in which she was put was a flour bag. वो जिस बैग में फॉक्स ने रखा था वो किसका था, फ्लोर बैग था. मीन्स आटा, जिसमें आटा लेकर आते हैं वो वाला बैग था.
and as the floor entered her nostrils she felt that she was going to sneeze. तो क्या हो गया, फ्लोर उसकी नोज में चला गया, और जब नोज में चला गया तो उसको ऐसा लगा कि अभी वो स्नीज करने वाली है. आच्छू. She put her claw into her pocket for her handkerchief. तो उसने अपना जो क्लॉ, पंजा, वो अपने पॉकेट में रखा कि चलो मैं वहां से हैंकी निकालती हूँ. And was overjoyed because she felt her little scissors. And what happened? When she put her hand, the claw in her pocket for the handkerchief, what she found? Scissors. Little scissors were there in the pocket. So she was very, very happy. Overjoyed means खुशी का ठिकाना ना होना. She was so happy. She immediately thought of a plan. उसने एकदम से एक तरकीब सोची. हाँ, plan. Quick as a wink, she could out her scissors. Wink means within no time. Within no time. Quick as a wink, she took out her scissors. झटपट उसने अपनी पॉकेट से scissor निकाली. She cut a little hole in the bag. उसने एक छोटा सा होल बनाया scissor से बैग में. Peeping out, she saw a great hill just ahead. Peeping means बाहर, ऐसे देखना. तो जैसे ही उसने अपना हेड बाहर निकाला, बाहर देखने के लिए, तो उसको क्या दिखाई दी? A great hill, एक बहुत बड़ी पहाड़ी. Hill just ahead, all covered with stones. बिल्कुल अपने आगे देखा कि एक बहुत बड़ी पहाड़ी है, बहुत बड़ी हिल है, जिसमें stones ही stones हैं. Papa Fox stopped to rest on his way up the hill. थोड़ी देर बाद जो पापा फॉक्स थे, ही वॉज टायर्ड, तो उन्होंने कहा चलो थोड़ा सा मैं आराम करता हूँ. सो ही स्टॉप टू रेस्ट ऑन हिज वे अप द हिल. तो वो उस पहाड़ी पर थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए रुक गए. हिज बैक वॉज टर्न टूवर्ड्स हर. अब वो किस तरह से आराम किया हुआ था कि जो बैक थी वो हेन की तरफ थी. सो ही कुडंट सी, बैग रखा हुआ था एंड ही वॉज टेकिंग रेस्ट. She took the opportunity and cut a big hole in the bag and jumped out. एकदम से उस वाइट हैन ने, लिटिल वाइट हैन ने इस पूरे सिनेरियो का फायदा उठाया और एक बहुत बड़ा सा होल बना दिया बैग में विद द हेल्प ऑफ द सिजर एंड कूदकर बाहर निकल आई बैग से. Now the best part what she did was she quickly put some stones in the bag in her place. अपनी जगह क्या किया, क्योंकि वहां तो स्टोन्स की माउंटेन थी, जल्दी जल्दी स्टोन्स रख दिए बैग में. After a short nap, Papa Fox picked up the bag. अब पापा फॉक्स तो वहां पर रेस्ट कर रहे थे, तो एक छोटी सी नींद के बाद, एक नैप के बाद वो उठे, पापा फॉक्स उठे और उन्होंने बैग को पिक किया एंड कंटिन्यूड अप द हिल. और फिर उस रास्ते पर चलने लगे. He thought the bag was much heavier than before. उनके माइंड में तो आया कि पहले तो इतना हैवी नहीं था बैग, अब ज़्यादा हैवी हो गया. बट इग्नोरिंग दिस ही सेड टू हिमसेल्फ, नेवर माइंड, शी इज़ अ फैट लिटिल हैन. बट उन्होंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया और माइंड में सोचा कि अरे ये तो एक मोटी सी लिटिल हैन है, तो शी मस्ट हैव ग्रोन अ लिटिल फैटर, तो वो थोड़ी और मोटी हो गई होगी. द थॉट ऑफ अ गुड सपर मेड हिज टंग हैंग आउट. फॉरगेटिंग एवरीथिंग, उन्होंने सोचा कि अरे कितना टेस्टी खाना मिलेगा आज खाने के लिए, तो उनकी जीभ में पानी आने लगा. द टंग हैंग आउट मीन्स जीभ में पानी आना. Mama Fox and all the baby foxes met Papa Fox at the front door. Now Papa Fox has reached the home. और बिल्कुल दरवाजे पर ही कौन मिला है? Mama Fox and baby foxes. They all were waiting anxiously for Papa Fox because all of them were hungry. What took you so long? said Mama Fox. Mama Fox ने बोला इतनी देर क्यों लग गई तुम्हें? What have you in your bag? क्या है इस बैग में? Asked the baby foxes excitedly. बिल्कुल एकदम एक्साइटेड होकर बेबी फॉक्सेस ने पूछा कि पापा पापा इसमें क्या है बैग में? It's a fat little hen, said Papa Fox, and she is so heavy I had to rest a while on my way up hill. क्या बोला पापा फॉक्स ने कि इस बैग में एक फैट लिटिल, मोटी सी एक लिटिल हैन है और वो इतनी हैवी है कि मुझे रास्ते में थोड़ी देर हिल्स पर आराम भी करना पड़ा. मामा फॉक्स क्विकली लिट अ वुड फायर. मामा फॉक्स ने जल्दी से वुड्स की एक फायर लिट की, मीन्स लकड़ियाँ थी और उन्होंने वो जला दी. एंड पुट अप अ बिग पॉट ऑफ वाटर टू बॉयल. और एक बहुत बड़ा पॉट
पानी का भर के उस पर बॉईल करने के लिए रख दिया। When the water began to boil, Papa Fox held the bag over the pot. जब पानी उबलने लगा, बॉयल होने लगा, तो पापा फॉक्स ने क्या किया, वो जो बैग था उस पैन के ऊपर, पॉट के ऊपर लेकर आ गए। As he held the bag over the pot, he said to Mama Fox, "When I drop her in, you clap on the lid." What he said to Mama Fox? कि जब मैं उस फैट हैंड को इस पॉट में डालूंगा तो उसके बाद इसको पूरा कवर कर देना। किसको कवर कर देना? पॉट को। क्लैप ऑन द लिड, जो लिड होती है, लिड इज द कवरिंग, दैट पर्टिकुलर प्लेट और वट एवर दैट इज कॉल्ड द लिड, वो इसके ऊपर रख देना। He opened the bag. Splash went the boiling water. जैसे उन्होंने बैग को ओपन किया, एकदम से आवाज आई, स्प्लैश, सारे के सारे व्हाट वर देयर? माउंटेन्स पर क्या थे? देयर वर yes, the baby fat hen was not there, stones were there. Yes, एकदम से स्प्लैश की आवाज आई, went the boiling water, एकदम से पानी चारों तरफ boiling water फैल गया। It spilled over Papa Fox, Mama Fox and baby foxes. सबके ऊपर वो boiling water गिर गया। Papa Fox realized too late that the little white hen had fooled him. अब समझ आया पापा फॉक्स को कि छोटी सी बेबी वाइट हैट ने तो मुझे बुद्धू बना दिया है। He said to Mama Fox, she must have escaped while I was taking a nap. तो उन्होंने मामा फॉक्स को क्या बोला कि जब मैं थोड़ी देर के लिए आराम कर रहा था वो उसी वक्त वहां से भाग गई होगी। Mama Fox said, "What a stupid fellow you are." क्या obviously she was in anger, or then what he said to Papa Fox, "You are stupid." The baby foxes began to cry as they were very hungry. अब baby foxes तो रोने लगे क्योंकि वो बहुत भूखे थे। Mama Fox went into their own garden and chased a few rodents. अब क्या करती मामा फॉक्स? वो अपने गार्डन में गई और chased means पीछे पीछे भागना। जहाँ पर भी कुछ, वहाँ पर क्या थे? rodents, rats and all those things. उनके पीछे पीछे गई, उनको पकड़ा। They had to be satisfied with rodent stew once again. को फिर से क्या खाकर सोना पड़ा? rodent का stew. Stew is what? It's like in water when you boil, keep on boiling the vegetables or something non-veg like meat and all, that is called stew. तो उनको वही खाना पड़ा। See, there is a picture. You can have a look over here. So the kids are crying because the little hen is not there. See their faces. Papa Fox decided that white hens were too clever and made up his mind that he would never catch a white hen again. तो पापा फॉक्स ने क्या डिसाइड किया कि ये जो वाइट हेन्स होती हैं ना, ये बहुत चालाक होती हैं, बहुत क्लेवर होती हैं, अब मैं कभी भी इनको पकड़कर नहीं लाऊंगा। Because he had a very bad experience. He was befooled by a white baby hen. I hope kids you liked the chapter. Now coming to the word meanings. Woods means forest. Strolled means to walk in a slow manner. Frightened, डरना, afraid. Opportunity, a time that is right for doing something. Means कभी आपको बोलते हैं कि you have to do this. So that is an opportunity when you are being asked to take part in some competition of your choice. So you are getting an opportunity. Supper, last meal of the day in the evening. Okay, that is the dinner. Realized, to understand fully. अब मतलब पूरा समझ आ जाना. Rodent and animal like the rat, as I have already told you. Pantry, a small room near the kitchen or the kitchen itself, जहाँ पर पूरा सामान होता है किचन का। कई बार किचन में ही सामान होता है ना। ग्रैब, एकदम से खींच लेना, बाय फोर्स ले लेना, ग्रैब कर देना। विंक, टू क्लोज एंड ओपन वंस आईज क्विकली विद इन नो टाइम, दैट इज विंकिंग। चेज्ड, रैन आफ्टर। सैटिस्फाइड मीन्स यू आर फुली सैटिस्फाइड, कंटेंटेड, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, इनफ, आई एम हैप्पी द वे आई एम, दैट इज सैटिस्फाइड।
Now kids, coming to the comprehension part, duck in the circle of the correct option in the OMR sheet. There was a little what? White hen. It is white hen. She had plenty of what? Seeds. Seed bearing plants. बहुत सारे plants थे जिसमें seeds वाले plants थे. There is nothing in the pantry for our baby foxes. Who said so? Mama fox. कि पैंट्री में कुछ भी नहीं है हमारे बेबी फॉक्सेस के लिए. पापा फॉक्स हर एंड पुट हर इनटू हिज बैग. क्या किया? ग्रैब किया, एकदम से पकड़ लिया था. ग्रैब्ड हर. किसको ग्रैब किया था? लिटिल वाइट hen. ग्रैब्ड. Now coming to fill in the blanks. Near the woods lived a who lived? Family of foxes. Lived a family of foxes. This is the first one. I want a fat hen for a supper. Dinner के लिए चाहिए. Who said this? Mama fox. He ran quickly off down the hill. Down the hill. She was a very neat and natty hen. Neat means बिल्कुल बहुत सुंदर, साफ सुथरी. Out she saw a great hill. Peeping out. कहाँ? बैग से peep out कर रही थी. She was caught now by the fox. So with the help of the scissors, she made a hole and she was peeping out. And what she saw? A great hill. After that, the C part. Say if the given statement is true or false. She had a little garden. Yes, this is true. She needs to go to the market for daily needs. No, this is false because she had many seed plants at in her little garden. Papa Fox held a bag over the pot. Yes. Papa Fox realized that little white hen had fooled him. Yes, kids, it's true. So that's all in today's chapter. I hope all of you have liked it, enjoyed the story. So that's all for today. Take care. Have a nice time. Goodbye.